and welcome to Dr. Dad Talk Show. I'm your host Indubala and today I would like to invite Dr. Mansi Shimpi, pediatric dentist. Please welcome. Welcome ma'am. Welcome to our show. Thank you for having me. Ma'am, please tell me about yourself. So I'm Dr. Mansi Shimpi. I'm a pediatric dentist. So mainly I look at the preventive and the pediatric dental needs of children. And with the rising dental issues in children, it is very important for us to address them at a young age. I started my education, I'm from Pune, so I did all of my education in Pune, the bachelor's as well as master's degree. And now I'm in Delhi, so this is a nice place to be in. Okay, ma'am, we have received many questions from audience related to that dentist topic. All right, sure. Yes. I'd love to talk. Shall we start? Yes. Okay. With the rise of sugary snacks and drinks, how has children's oral health been impacted, and what advice do you have for parents to maintain their kids' dental hygiene? Okay, so nowadays, of course, there are so many processed foods available, so many amount of hidden sugars present in regular foods as well as drinks. So what I would advise parents to do is to limit this sugary snacks and drinks to either just after their meals or else make like a sugar bank for children if they want to have some chocolates or candies. So you have a concept of sugar bank where the child can just choose maybe once or twice in a week to have any candies or sugars. When it comes to packaged drinks, what I would advise is to use a straw whenever they're drinking so that the contact with the teeth of the sugary drinks is minimal. So that is another thing that they can do, and limit these sugary snacks and drinks to immediately after having their food. So if the child wants to have any chocolate, give it right after their lunch or dinner, because the saliva or spit formation in the mouth is a lot right after eating. Okay. So all of that spit will help wash out the food that gets stuck on in the teeth. So that's another thing that is very important when it comes to the sugary snacks and drinks. Okay. Next question, ma'am. What is the reality of brushing before bedtime? How important is that? Brushing before bedtime. Whenever we ask children whether they brush their teeth at bedtime, some of them say yes. Some of them are of course lying. Yes. Some straight away say no. So the reality is that at least about 80% of children do not brush their teeth at night time or bedtime. Yes. Some of them brush their teeth, but many times parents end up giving them milk after brushing their teeth, and some of them don't even brush in the morning. So what I would suggest is that make this a game for children and make them brush their teeth at night, because it is very important to clean all of the food that gets stuck in teeth throughout the day. It's very important to get rid of that food by brushing at night. Okay. So one thing that can be done is parents can stand alongside the child and make them brush their teeth, or make it a game, make it like a reward system for children so they can brush their teeth at night. And it is very, very important to brush your teeth both in the morning and at night. At the night. कुछ ना कुछ लालच तो देना ही पड़ेगा उनको ब्रश करवाने के लिए. रिवॉर्ड सिस्टम नहीं मिली तो फिर बच्चे, और धीरे धीरे वो आदत जब बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली बच्चा सो ही नहीं पाएगा. वो खुद मम्मी पापा को बताएगा कि हाँ मुझे ब्रश करना है, फिर मैं जाके सोऊंगा. That's right. So yes. Okay. And with the prevalence of thumb sucking and pacifier use, what are the potential effects on children's dental development, and how can parents mitigate these habits? Alright, so thumb sucking is something that is commonly seen in almost all children. Yes, ma'am. Until the age of about 3 years, thumb sucking is considered normal. Okay. When it comes to pacifier sucking, yes, many parents give a pacifier to their children. Some of them dip it in either honey or sugary liquids, which should be avoided. So do not dip the pacifier in sugar or honey and then give it to your child, because that is not good for your teeth. When it comes to thumb sucking, between the ages of 3 and 4 is when you have to start curbing the habit. So at that time you can either use some bitter chemicals like neem की पेस्ट बना के, या फिर टर्मरिक, ऐसे something that doesn't taste that good. So you just apply it on the finger that the child uses to suck their thumbs, and that will help in slowly reducing the habit. Beyond the age of 4 is when we need to start actually correcting the habit, because what happens is every time the child is sucking their thumb, they are putting pressure on their palate, and the palate, which is the तालू जिसको बोलते हैं, तो उस पे अगर प्रेशर पड़ा
तो व्हाट हैपेंस इज उनके जो जॉ की साइज होती है वो कम कम होती जाती है. हमारे ऑल ऑफ आवर जॉज आर यू शेप्ड एंड बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन द पैलेट दे एंड अप गेटिंग वी शेप्ड एंड इसकी वजह से जो आगे के दांत होते हैं दे गेट मूव्ड आउटवर्ड्स और प्रोक्लाइन. Okay. तो इसलिए That's the reason. yes, so that is one main thing that happens in case of changing of the tooth structure or the jaw structure. Yes. और दूसरी चीज जो टंग की पोस्चर होती है वो नीचे नीचे चली जाती है. So that's why thumb sucking should be reduced from 3 to 4 years of age, and if beyond 4 it is still extending, then you need to visit a pediatric dentist so that certain appliances can be given to stop this habit. Okay. और मैम ये कौन सी एज तक लाइक नॉर्मल है थम सकें? वो टिल 3 years of age नॉर्मल होता है. Okay. 3 से 4 तक आपको घर में रेमेडीज ट्राई करने हैं बच्चे को रुकाने के लिए थम सकिंग. राइट. एंड बियॉन्ड 4 देन यू हैव टू विजिट अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ताकि कोई अप्लायंस डाल सके मुंह में ताकि बच्चा फिर थम पैलेट पे ऊपर रेस्ट ना कर सके. Yes. Okay, ma'am. In your experience, what are the long-term consequences of neglecting children's dental health, and how can parents prevent these issues? The long-term consequences of neglecting dental health, there are way too many consequences. So firstly, what we hear from all parents is that these are milk teeth. ये दूध के दांत है, ये गिरने वाले हैं. Yes, ma'am. ये जनरल That's परसेप्शन है जो हमें चेंज करना है. बिल्कुल. Because milk teeth are very important for the overall jaw development of children. That is one thing. Okay. तो अगर दूध के दांत बहुत जल्दी इधर गिर गए या फिर कैविटीज बन गए दूध के दांतों में, तो आगे पीछे के दांत उस जगह को, कैविटी वाले जगह को बंद करने की कोशिश करते हैं. तो उसके वजह से फिर क्राउडिंग हो जाती है. जब नए दांत आने वाले होते हैं उनको आने के लिए जगह नहीं मिलती है. सो दैट इज वन मेन थिंग बिकॉज द मिल्क टीथ एक्ट एज नेचुरल स्पेस मेंटेनर्स इन द माउथ. सो दैट इज वन थिंग. देन सेकेंडली, आगे के दांत बहुत मेनी टाइम्स यू सी दैट द चिल्ड्रन हैव द फ्रंट 4-5 teeth which are severely decayed और उनकी सिर्फ जड़ें रह जाती है. तो उससे क्या होता है, बच्चों की स्पीच में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. दे स्टार्ट लिस्पिंग. अगर आगे के दांत ना हो तो ठीक से प्रोनाउंसिएशंस नहीं कर पाते वर्ड की. और इसी एज में तो स्पीच डेवलप होता है. अराउंड 3 to 7 years of age is when your speech is developing. You're learning new words. You're learning how to articulate new words. So at this age, it's very important to have your upper front teeth. और तीसरी चीज कि अगर पीछे के दांत अच्छे ना हो, उनमें कीड़ हो, बच्चों को दर्द होता है खाने में, तो फिर वो खाने में सर्टेन चीज़ें अवॉइड करेंगे, हार्ड चीज़ें अवॉइड करेंगे. तो अगर बच्चा सेमी सॉलिड डाइट खाने लगा तो फिर जॉ की ग्रोथ ठीक से नहीं होगी. दूसरी चीज़, अगर एक ही साइड से खा रहे, इस साइड पे दर्द है तो एक ही साइड से खाएंगे तो अगेन इम्बैलेंस होगा जॉ में. तो दैट इज अनदर रीजन कि बहुत सारे बच्चों में जॉ की डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती. एंड चौथी चीज, बच्चे अब सब अच्छे दिखना चाहते हैं. राइट. अगर दांत बहुत ज्यादा खराब हो तो फिर बच्चा खुद कॉन्फिडेंट नहीं होता. मेनी टाइम्स आप बच्चों को देखते हो हंसते वक्त मुंह बंद कर देते हैं बिकॉज उनको दूसरों को अपने दांत नहीं दिखाने हैं. सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जॉ की डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती. सो एंड क्राउडिंग, बहुत सारे आगे पीछे दांत हो जाने लगते हैं अगर जॉ की डेवलपमेंट ठीक से ना हो. इसलिए बहुत सारे बच्चे अब ब्रेसेस लगाने लगते हैं. हाँ, राइट. बड़े होके छोटे बच्चों को बड़े होके फिर ब्रेसेस ही लगने पड़ते हैं क्योंकि जॉ की उनकी ग्रोथ ही ठीक से नहीं हुई है. ओके मैम, ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है. ये तो हमें खुद भी नहीं पता था. आई थिंक बहुत से पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि जो दूध के दांत है वो गिरने भी जरूरी हैं और उनकी अपनी लाइक एक अपने गिरने का टाइम होता है उनका. उससे पहले अगर गिर गए तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. और मैम, ये जो बच्चे आजकल चॉकलेट्स वगैरह खाते रहते हैं, ये लाइक हम मतलब कहते हैं ना कि हर कोई बच्चे को टॉफी, चॉकलेट, हर कोई मतलब बच्चे से मिलता है तो उनको इम्प्रेस करने के लिए या कि हमारे पास आ जाए वो, तो उनको ये सब देते हैं. तो क्या ये ठीक है चॉकलेट्स वगैरह बच्चों को देना? आप मना तो नहीं कर सकते. अगर देना भी है, जैसे मैंने पहले बताया, एक शुगर बैंक रखो. हाँ. ताकि उसमें से आप 1-2 ले सकते हो. या फिर दूसरी चीज, जब आप चॉकलेट दे रहे हो तो उनको खाने के तुरंत बाद दे दो ताकि तब खाने के बाद हमारे मुंह में जो स्पिट फॉर्मेशन होती है वो ज्यादा होती है. तो दैट स्पिट विल एक्ट लाइक अ नेचुरल माउथ वॉश. तो फिर वो जब जो भी चॉकलेट या चिप्स जो भी हो वो दांत में जो फंसा होता है वो अपने आप निकल जाता है. ओके.
और मैम मैंने ये भी सुना है कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई 4-5 साल तक अगर आप बच्चों को नहीं देते हैं, चॉकलेट टॉफी से दूर रखते हैं छोटे बच्चों को, तो मतलब उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक बच्चों को अगर वो ले भी लेते हैं, इंटेक करते भी हैं चॉकलेट? सो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ ऑफन यू आर हैविंग, कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने। इट्स अ ट्रू और अ मिथ? इट्स मेनली इट कुड बी बोथ। Okay. एक तो ये चीज होती है कि अगर 4-5 साल तक दिया नहीं है तो बच्चों को इतनी आदत नहीं होती, सो दे डोंट इवन लाइक इट दैट मच। वो एक चीज होती है। Okay. दूसरी चीज, अगर इतने टाइम तक मिला नहीं है तो और ज्यादा चाहिए तो और ले लेते हैं। गुड एंड बैड बोथ। एग्जैक्टली, सो एवरी कॉइन हैज बोथ हेड्स, सो प्रोज एंड कॉन्स उसके भी होते हैं। पर आप जितना भी दो लिमिट में दो, हर चीज लिमिट में लो। राइट, हम मना तो बिल्कुल नहीं कर सकते एंड इट्स नॉट फेयर ऑल्सो। सबको चॉकलेट्स, हम डेंटिस्ट होके हम भी खाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं खाते, पर लिमिट में खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, when do you think the kids needs to wear braces etc. other orthodontic invention, what are different options? Okay, so braces, the traditional form of braces जो हम तारे जिसको बोलते हैं, so that should be ideally given when all of the permanent teeth, जब सब दूध के दांत गिर जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं, तब हमें ब्रेसेस देने पड़ते हैं, इफ एट ऑल द चाइल्ड रिक्वायर्स। बट कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो जबड़ा है वो ठीक से अगर ग्रो नहीं हुआ है, so at the age of 7 to 9 years in the pre-pubertal period also we can do some interventions ताकि हम जॉ की ग्रोथ मॉड्यूलेट कर सके। तो अगर जॉ ठीक से नहीं ग्रो हो रहा है तो हम उसको थोड़ा आगे ला सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक प्रोसीजर्स कैन बी कैरिड आउट फ्रॉम द एज ऑफ अराउंड 7 to 9 years, 7 to 10 years ऑल्सो। बियॉन्ड दैट जब 11-12 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, तब उनको सब दांत, उनके जब परमानेंट दांत आ जाते हैं, तो तब वी कैन गो इन फॉर द ट्रेडिशनल ब्रेसेस। अब तीसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने अलाइनर्स का नाम सुना होगा, इनविजिबल ब्रेसेस जो होते हैं। यूजुअली बच्चों में हम वो तब देते हैं जब बच्चे की कंप्लायंस, जब बच्चा खुद रिस्पॉन्सिबल हो, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज रिमूवेबल। तो अगर स्कूल में चला जाएगा बच्चा, अगर निकाल दिया फिर पहनेगा नहीं, उनके आवर्स होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ वेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर पेशेंट कंप्लायंस अच्छा हो तो ही वी कैन गो इन फॉर द इनविजिलाइन और इनविजिसी, जो टीनेजर्स में होता है वो इनविजिसी होता है, या फिर दूसरे अलाइनर्स, और एल्स जस्ट गो फॉर द ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो मेटल के भी आते हैं और सिरेमिक जो दांत के रंग के होते हैं वो भी आते हैं। ओके, आजकल तो कलरफुल भी आने लग गए हैं, कलरफुल तो आते हैं, बच्चों को खुश करने के लिए वो चेंज करके जाते हैं, मोटिवेट करने के लिए हम कलरफुल भी दे देते हैं। सो कई बच्चे सोचते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है कि और बच्चों के नहीं है, तो मतलब अब तो ट्रेंडी हो गया है, उसको ब्रेसेस है तो मुझे भी चाहिए। बट यस, वन अदर थिंग दैट यू टच्ड अपॉन, अलाइनर्स सिर्फ उनको दे सकते हैं जो पर्टिकुलर केसेस, अगर बहुत ज्यादा क्राउडिंग या कुछ हो तो कभी कभी हमें कुछ दांत भी निकालने पड़ते हैं ताकि बाकी के दांतों के लिए जगह बन पाए। सो दैट इज वन अदर थिंग। बहुत सारे पेरेंट्स डर जाते हैं कि अरे दांत निकालना है बच्चे का, पर अगर जॉ की ग्रोथ ठीक से ना हो और जगह नहीं हो सब दांतों के लिए, तो तब there are some teeth that we have to remove. They don't really help in chewing as well. ऐसे नहीं कि कुछ बहुत it's not such a big deal कि ये दांत निकालने हैं, पर अगर अच्छी अलाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। Okay, ma'am. What role does nutrition play in children's oral health? And are there specific dietary recommendations you have for promoting strong teeth and gums? Okay, so nutrition plays a very important role. Like I said, if you give children hard foods, जो raw fruits and vegetables होते हैं, वो अच्छे से खाने चाहिए बच्चों को ताकि उनकी जॉ की और टीथ की डेवलपमेंट अच्छे हो। Foods that are strong, that are high in vitamin D, vitamin C are very important for your teeth as well as your gums. Vitamin C is very important for the good health of your gums. Calcium is important because calcium helps in the formation of teeth. Which the main constituent of the teeth is calcium, जो enamel में form होता है। तो that is one thing that is important. और when it comes to nutrition, आप एक अच्छा balanced diet दो, बच्चे को पानी बहुत ज़्यादा पिलाओ। Nowadays children don't end up having enough water, so not even elders. Yes, not even elders. So पानी ज़्यादा पीना होता है। The more amount of water you drink, the less food gets stuck in your teeth
and that is one other reason why cavities will not occur. Again, that is one thing that's important. Okay, move to next one. How many visits should there be to a dentist, if you can break it age wise? Also, when is it that a kid must visit a dentist immediately? Alright, so when it comes to age wise, breaking down age wise, most parents will not know this, but the first visit of a child to a dentist has to be at 6 months of age, Oh, or really? when the first tooth erupts in the mouth, and no later than 12 months. So the first visit has to be within 12 months of a child being born. Okay. तब पेरेंट्स को लगता है कि अरे दांत ही नहीं है तो क्यों आना है, तो यूजुअली अराउंड 6 to 7 months में पहला दांत आ जाता है. सो देन पेरेंट्स आर टॉट कि दांत को, उस दांत की कैसे केयर लेनी है. देन द हैबिट ऑफ बॉटल फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग कब करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो सब काउंसलिंग दिया जाता है पेरेंट्स को. डाइटरी काउंसलिंग दी जाती है. सो द फर्स्ट विजिट शुड बी बिटवीन 6 and 12 months ऑफ एज. उसके बाद अराउंड 3 years से पहले हम रेगुलरली फ्लोराइड एप्लीकेशंस करते हैं. सो फ्लोराइड इज वन मिनरल दैट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग टीथ एंड मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू डीके. Okay. तो रेगुलर 4 to 6 months के within 4 to 6 months you must visit the dentist, so that we can check for the jaw growth, we can check for any new decays that are getting formed. And once the child is above 6 years of age, again अगर कुछ मॉड्यूलेशंस करने हैं जॉ के ग्रोथ में तो वो कर सकते हैं. न्यू कैविटीज अगर आ रही है, सो एवरी 4 to 6 months इट इज अ मस्ट टू विजिट द डेंटिस्ट. Okay. एंड रेगुलर क्लीनिंग, फ्लोराइड, जो प्रिवेंटिव डेंटल ट्रीटमेंट्स होती है उनके लिए आप रेगुलरली विजिट करो. ऐसे नहीं कि जब बच्चे को दर्द हुआ होगा. तभी आना है. बहुत वेरी ऑफन दैट इज द सिनेरियो Yes. कि बच्चे को जब दर्द होता है, अनफॉर्चुनेटली इट इज एट अ स्टेज वेयर वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट. बहुत ज्यादा नस के पास अगर कैविटी पहुंच गई है तब दर्द होता है. Okay. तो तब हमें ज्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है. तो आप पहले ही स्टेज में अगर आ गए तो सिर्फ छोटा सा अगर कैविटी हो या कैविटी ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए Okay. ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, या फिर छोटी सी कैविटी हो तो जल्दी से ड्रिल करके फिल कर सकते हैं. Okay. पर अगर बहुत डीप चली गई हो तो फिर वी हैव टू गो इन फॉर पल्पेक्टमी. जो बच्चों में रूट कनाल जिसको बोलते हैं उसको पल्पेक्टमी बोलते हैं. तो बच्चों के दांत में भी रूट कनाल किए जाते हैं. Okay. तो वो भी करना पड़ता है अगर ज्यादा डीप हो. क्यों? क्योंकि हमें वो दांत बचा के रखना है. इट्स अ नेचुरल स्पेस मेंटेनर. नए दांत को आने के लिए दूध के दांतों को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, okay, ma'am. What's with the toothpaste? Fluoride. When should kid use what type of toothpaste and how much quantity? What's the right way to brush? Alright. So toothpaste is a very important constituent when it comes to brushing your teeth. Toothpaste हमें depending on the age of the child, there are different toothpastes available from 0 to 2 years. Usually non-fluoride toothpastes are recommended क्योंकि बच्चा spit नहीं कर पाता. तो अगर थोड़ी सी टूथपेस्ट अंदर चली गई सो इट कैन कॉज इंक्रीज इन फ्लोराइड कंटेंट इन द बॉडी, तो वो अच्छा नहीं होता. इसलिए 0 to 2 years में नॉन फ्लोरिडेटेड, वो भी स्मियर, इट्स कॉल्ड अ स्मियर साइज. सिर्फ एक छोटा सा हमें एकदम राइस ग्रेन साइज जिसको बोलते हैं वो यूज करना पड़ता है बिटवीन द एज ऑफ 0 to 2. Then beyond that, again use a fluoridated toothpaste from 3 years of age onwards. You can use a fluoridated toothpaste. तो वो भी काफ़ी सारे आते हैं ब्रांड्स मार्केट में. तो उसकी भी राइस ग्रेन साइज बियॉन्ड यू हैव टू यूज अ राइस ग्रेन साइज्ड अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट, मतलब चावल के दाने जितनी क्वांटिटी टूथपेस्ट की. एंड बियॉन्ड द एज ऑफ 6 years इज अ पी साइज्ड अमाउंट, मटर के दाने जितनी. ऐसे नहीं कि पूरे ब्रश के ब्रिसल्स के ऊपर हमने टूथपेस्ट लगा दी. इतनी हमें भी जरूरत नहीं है, बच्चों को भी जरूरत नहीं है, इवन अडल्ट्स. Pea-sized amount is what is required. And it's always better to use a fluoridated toothpaste. या फिर nowadays you have newer toothpaste available which have nano hydroxyapatite in them. So ये जो टूथपेस्ट होता है वो दांतों को जो भी एसिड कंटेंट अगर ज़्यादा हो मुंह में और इनामल वेयर ऑफ हो जाता है तो वो रिप्लेस करने के लिए नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की टूथपेस्ट भी आती है. So that is one other thing that helps in strengthening the tooth structure. Okay. Any takeaway message, ma'am? Takeaway message, most importantly, is give your children a good balanced diet. Make sure they drink a lot of water. Make them brush twice daily, morning, evening.
आप खुद लेके जाओ बच्चे को, अगर फैमिली पेरेंट्स अगर कर रहे हो, सो दैट बिकम्स अ ह्यूज मोटिवेशनल फैक्टर फॉर चिल्ड्रन. अगर पेरेंट्स ही 2 बार ब्रश नहीं कर रहे दांत, तो बच्चे कहाँ से करेंगे? सो यू हैव टू बी set an example for your children. And visit the dentist every 4 to 6 months so that all these problems that we just spoke about can be avoided. And yes, so that's it. Okay, thank you so much, ma'am, Thank for you. giving valuable insights. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, audience, for watching Dr. Dad Talk Show. I hope you found your answers. If you have any other question, kindly comment us. That's all for today. Goodbye and take care.